أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور تاب کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے. قسم ہے فجر کی. اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی فجر دی جا سکتی ہے، لیکن جو اگلی بات آئی 10 راتوں کی اور جفت اور تاب کی، تو یہ کون سی راتیں ہو سکتی ہیں؟ ذوالحج، بعض کہتے ہیں ذوالحج کی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ راتیں جو ہے وہ رمضان کی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضیلت رکھی ہے. یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے آج کے ساتھ کس طرح کیا؟ اور ارم قبیلہ کے لوگ تھے ستونوں والے کہ وہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا. اور سمود کے ساتھ کس طرح کیا جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا. اور میخوں والے فرعون کے ساتھ وہ لوگ جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے تھے، بس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلا دیا ہے. تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے. بس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزمائے، پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی. لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رزق کم کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ 29ویں پارے میں 30ویں پارے میں بار بار کھانا کھلانے کی طرف بہت زیادہ راغب کیا گیا. وہ مسلمان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں کہ جس کا ہمسایہ بھوکا ہو. اور کتنے ہمسائے بتائے گئے، کتنے گھروں تک؟ 40 اور چاروں طرف سے. تو آپ سوچیں کہ ہر مسلمان اگر اس طرح اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا شروع کر دے تو کیا کوئی بھوکا رہ جائے گا؟ اور تم کیا کرتے ہو؟ تأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کھا جاتے ہو سب سمیٹ کر کھا جانا. کیا ہے یہ؟ گناہ کبیرہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کا حق رکھا ہے، مال سے اتنی محبت ہے کہ تم ان کا حق بھی کھا جاتے ہو. اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ محبت کرنا. تو اگر آخرت چاہیے، اگر جنت چاہیے، آپ جانتے ہیں کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا کا سونا مٹی بن جاتا ہے. اس کے لیے پھر آخرت کی اہمیت سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے میں وہ کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو. تو اس کے پاس جو نعمتیں بھی ہیں، چاہے اس کی جان کی صورت میں ہو اور اسی طرح اس کے پاس مال کی صورت میں ہو، اس کی قیمتی ترین چیز اس کی اولاد ہے، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے وہ سب کی سب کس رستے میں لگ جائیں؟ وہ رب کے رستے میں لگ جائیں. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین پھوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے. اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جیسا وہ پکڑے گا ویسا کوئی پکڑ نہیں سکتا، جیسا وہ باندھے گا ویسا کوئی باندھ نہیں سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، سوائے کن کے؟ اے اطمینان والی جان،
ए नफ्स मुतमइन। कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाम ही रख दिया इत्मीनान वाली, मुतमइन रहने वाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मोमिन अपने दिल से पूछे कि उसके दिल का क्या हाल है अल्लाह के फैसलों पर, उससे पता चलता है कि उसका ईमान कितना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर मोमिन के ऊपर जिसका जितना ईमान होता है उस पर आजमाइशें भेजते हैं, लेकिन जो ईमान वाले हैं वो हर हालत में सब्र करते हैं और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हैं, तो फिर वो क्या बन जाते हैं, वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाते हैं। अब्दुल नासिर अल्बानी आप जानते हैं कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। कहते हैं एक दफा बयान कर रहे थे, दर्स दे रहे थे, और इस दौरान उनको खबर दी गई कि आपके 3 बेटों का एक्सीडेंट हो गया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह और अपना दर्स जारी रखा। उसके बाद फिर उसी दौरान को बताया गया नहीं 2 फौत हुए हैं, 1 बच गया। 5 बेटे थे टोटल, इकट्ठे 2 बेटे चले गए, लेकिन यकीनन वो नेकी के रास्ते पर होंगे। जो बाप इतना मुतमिन था और अपना जो काम कर रहे थे वो करते रहे, इसलिए कि जानते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी को चंद रोजा है, वो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं। यही चीज इंसान को सुकून देती है। इरजी इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया, चल अपने रब की तरफ जो तुझसे राजी है और पसंद की हुई है। सुभान अल्लाह। ये किससे कहा जाता है जब मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं और इस तरह आके पैगाम देते हैं कि तू तो नफ्से मुतमईन था, तेरे रब ने तुझे हर तरह से आजमाया, किसी को देकर आजमाया, किसी से लेकर आजमाया, लेकिन तू हर हालत में अपने रब का शुक्र अदा करता रहा। चल तेरा इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया, तेरा रब तुझसे राजी हो गया और तेरी ऐश का वक्त शुरू हो गया। फदखुली फी इबादी, बस मेरे बंदों में दाखिल हो जा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम वदखुली जन्नती, और वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। इसका क्या मतलब होगा? मेरे बंदों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौन सी ऐश की जगह रखी है? जन्नत में दाखिल हो जाओ। मोमिन हर हाल में अपने रब से राजी होता है, हत्ता कि मौत के वक्त भी अपने रब से राजी होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की जान इसके पहलुओं से निकल रही होती है, इस हाल में अल्लाह की तारीफ कर रहा होता है। मौत जो है मोमिन के लिए तो खुशी का बाइस है कि अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। इसी तरह एक हदीस मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की रूह मरने के बाद जन्नत के दरख्तों पर उड़ती फिरती है, यहाँ तक कि जिस रोज मुर्दे उठाए जाएंगे उस रोज वो रूह अपने जिस्म में लौटाई जाएगी। इसी तरह आपने याद होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल रात में जन्नत में दाखिल हुआ, देखा हजरत जाफर फरिश्तों के साथ उड़ रहे हैं और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु तख्त तकिया लगाए हुए बैठे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और हजरत जाफर क्यों उड़ रहे थे? उनके बाजू कट गए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको 2 पर अता फरमाए थे। इसलिए हमें बहुत सी ऐसी हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को, अंबिया को जन्नत में देखा। तो इंशाअल्लाह तैयारी, तो इंशाअल्लाह हमारी जुदाई जन्नत से सिर्फ इतनी ही है जितनी हमारा आखिरी सांस है। असल बात क्या है, ये जो जिंदगी है अगर ये रब की रजा के मुताबिक बन गई तो इंशाअल्लाह जो अगली जिंदगी है वो हमारी पसंद और रब की पसंद की है। तो हर मोमिन के पास फरिश्ते आकर इस तरह से कहते हैं और फिर मोमिन के लिए खुशी का इससे ज्यादा और कोई बात हो नहीं सकती। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, नहीं मैं इस शहर की कसम खाता, और तू इस शहर में रहने वाला है, और जन्ने वाले की कसम, और उसकी जो उसने जना, बिलाशुबा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी क़बद, बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया। हर इंसान की जिंदगी में आप देख लें कैसे कैसे गम आते रहते हैं, एक आजमाइश से निकलता है तो एक और तैयार होती है, और ये क्या होगा, मौत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या वो ख्याल करता है कि इस पर कभी कोई कादिर ना होगा, और कहता है यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, मैंने तो ढेरों माल उड़ा दिया, मैंने तो ढेरों माल बर्बाद कर दिया। तो मोमिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर मोमिन को अल्लाह माल देता है तो उससे वो अपनी आखिरत बनाता है, तो काफिर जो है वो ये काम करता है, और फिर एक तो उड़ाता भी है और फिर बैठ कर महफिलों में उसके तस्करे भी करता है। क्या वो ख्याल करता है इसे किसी ने नहीं देखा? क्या हमने इसके लिए दो आंखें नहीं बनाई, और एक जुबान और दो होंठ, और हमने इसे दो वाज़े रास्ते दिखा दिए। कुरान पढ़ के समझ आ रही है ना कि दो रास्ते वाज़े तौर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिखा दिए। फिर वो मुश्किल घाटी में ना घुसा। और तुझे किस चीज ने मालूम करवाया वो मुश्किल घाटी क्या है? वो क्या है? फक्कु रक़बा, गर्दन छुड़ाना है। ऐसा खर्च होता था ना। आपको याद है कि हजरत अबू बकर के बारे में आता है कि हर जुमे एक गुलाम आजाद करवाया करते थे, और 17 वो गुलाम आजाद करवाए थे कि जिनको सख्त अज़ियत दी जा रही थी, यानी इस्लाम कबूल करने की वजह से जिनको सख्त सजाएं दी जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से कह दिया करते थे अबू बकर फलां को भी आजाद करा दो, अबू बकर फलां को भी, और वो फौरन अपना रुपया पैसा इस काम पर खर्च करते थे। हदीस है, कोई औलाद अपने वालिद का बदला नहीं दे सकती सवाए इसके कि इसे गुलामी की हालत में पाए और खरीद कर आजाद कर दे। और इसी तरह एक और चीज मिलती है, अबू हुरैरा से रवायत है, जो शख्स मोमिन गर्दन को आजाद करे, अल्लाह ताला उसके हर उसके बदले उसका एक कोस आंख से आजाद करते हैं। और इस आमन की यौमिन ज़ी मस्क़बा, या किसी भूख वाले दिन में खाना खिलाना, और किसी कराबत वाले यतीम को, या मट्टी में मिले हुए किसी मिस्कीन को। नफरत ना करें। बाज़ का तो होता है ना, लिबास अच्छा नहीं तो उनको बिठा लें और उनको खाना दें। ये वाली आयत याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खास तौर पे कहा ज़ा मसरबा, मट्टी वाला, पूरी हालत में है। हमने भी तो आखिर मट्टी में ही जाना है। फिर ये हो कि वो इन लोगों में से जो ईमान लाए, जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की, एक दूसरे को रहम की वसीयत की। उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही लोग दाएं हाथ वाले हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयात का इनकार किया वही बाएं हाथ वाले हैं, और इन पर हर तरफ से आग होगी जो बंद की हुई होगी। आप देखिए कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले जो कहा कि खर्च करो, खाना खिलाओ, लेकिन उसके साथ क्या कहा कि आमनु, ईमान लाना भी जरूरी है। एक मौके पर एक फौज गई, अबू उबैदा बिन जर्राह जो थे वो अमीर लश्कर थे। ऐसा हुआ कि जंग काफी लंबी हो गई, जो इनके पास खाने का सामान था वो खत्म हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि खाने पीने की चीजें बहुत कम रह गई। तो फिर अबू उबैदा ने क्या कहा कि सारा सामान इकट्ठा कर लो। सब इकट्ठा किया गया और सबको एक जैसा इक्वली दिया जाता था। एक ऐसा वक्त आया कि एक खजूर दी जाती थी, और फिर ऐसा वक्त भी आया कि एक खजूर भी ना बची। अब बड़े मुश्किल हालात थे। फिर कुछ दिनों के लिए इस तरह होता था कि किसी से उधार 3 ऊँट लिए जाते थे, उनको ज़िबा किया जाता था, वो खा लेते थे, और उनका ख्याल था कि हमें पीछे से कुछ ना कुछ राशन आ जाएगा, कोई ना कोई हमें मदद मिल जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। तो फिर जब इतना मुश्किल ज्यादा बढ़ती चली गई तो फिर इनको एक व्हेल मछली मिली, जिसके बारे में हम जानते हैं अक्सर हदीस में कहती है कि वो इतनी बड़ी थी कि उसकी एक आंख में 13 सहाबे बैठ गए।
और फिर आप सोचें कि वो 1300 तकरीबन लोग थे कि जो एक माह तक खाते रहे, थोड़ी सी मुशक्कत काटी तो अल्लाह ने कैसा बड़ा इनाम दिया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आके बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, मेरा हिस्सा भी लाए हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसे लौटाता है। तो मैं यही सोच रही थी कि आप सोचें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे जन्नत के इंशाअल्लाह ताला, वहां पे फल के बारे में जो पता चलता है बहुत बड़े साइज के होंगे, वहां के जो परिंदों का पता चलता है वो भी ऐसे ही होंगे, बख्ती ऊंटों जैसे वहां के परिंदे होंगे। एक वेल मछली जो है ना, उसके बारे में आता है कि 33 टन रोजाना की खुराक है। कितनी होती है 33 टन? 33,000 किलो रोजाना खाती है। तो वो एक अल्लाह सुब्हाना ताला की मखलूक है। तो वो पूरी मखलूकात की जरूरियात को पूरा करने वाला, अगर हम अपने माल में से किसी को थोड़ा बहुत खिला देंगे तो उससे हमारे माल में कमी नहीं आएगी, बल्कि उससे क्या होगा, हमारे दर्जात में बुलंदी का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वशम्सी वदुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी धूप की और चांद की जब उसके पीछे आए, और दिन की जब उस वक्त सूरज को जाहिर कर दे, और रात की जब वो इस सूरज को ढांप ले, और आसमान की और उस जात की जिसने इसे बनाया, और जमीन की और इस जात की जिसने इसे बिछाया, और नफ्स की उस जात की जिसने इसे ठीक बनाया, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर उसकी नाफरमानी और उसकी परहेजगारी उसके दिल में डाल दी। अल्लाह का ये बड़ा एहसान है। इंसान जब भी कोई गुनाह करता है तो एक बोझ सा महसूस करता है, और जब नेकी करता है तो दिल में सुकून और राहत आती है। तो अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखा दिए। यकीनन वो कामयाब हो गया जिसने इसे पाक कर लिया, और यकीनन नामुराद हो गया जिसने इसे मट्टी में दबा दिया। कौम समूद ने अपनी सरकशी की वजह से झुठला दिया, और जब उसका सबसे बड़ा बदबख्त उठा तो उसने अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह की ऊँटनी और इसके पीने की बारी का ख्याल रखो। तो उन्होंने इसे झुठला दिया, पर इस ऊँटनी की पूंछें काट दी। तो इनके रब ने इन्हें इनकी गुनाह की वजह से पीस कर रख दिया। पूंछें तो एक ने काटी थी, सबको क्यों पीस के रख दिया? सब शामिल थे। फिर इस बस्ती को बराबर कर दिया और वो इस सजा के अंजाम से नहीं डरता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कसम है रात की जब वो छा जाए, और दिन की जब वो रोशन हो जाए, और उसकी जो उसने पैदा किया, नर और मादा, इन्ना सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिश यकीनन मुख्तलिफ है। हर एक बहनों बहनों के नसीबों में फर्क है, बहन भाइयों के आजमाइशों में फर्क है। बस लेकिन वो जिसने दिया और नाफरमानी से बचा, उसने सबसे अच्छी बात को सच माना, यकीनन हम इसे आसान रास्ते के लिए सहूलत देंगे। आसान रास्ता कौन सा है? जन्नत का रास्ता आसान। एक कदम चल के जाएंगे, रब दौड़ के आएगा। एक नेकी करेंगे तो 700 तक, 10 से लेके मिनिमम 10 हैं, और 700 तक अजर दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। वह अम्मा मन बखिला वस्तगना, मगर वो जिसने बुखल किया और बेपरवाह हुआ, और उसने सबसे अच्छी बात को झुठला दिया, तो यकीनन हम इसे मुश्किल रास्ते के लिए सहूलत देंगे। तो जिस तरफ को जाना चाहता है, जिस तरफ को चढ़ना चाहता है, फिर अल्लाह ताला भी इसको छोड़ देते हैं, और उसका माल इसके किसी काम न आएगा जब वो गिरेगा। इन्ना अलैना लल हुदा, बिलाशुबा हमारे ही जिम्मे यकीनन रास्ता बताना है, और बिलाशुबा हमारे ही इख्तियार में यकीनन आखिरत और दुनिया है। बस मैंने तुम्हें एक ऐसी आग से डराया जो शोले मारती है, ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा, जिसमें उसमें बड़े बदबख्त के सिवा कोई दाखिल ना होगा। कौन? अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, जिसने झुठलाया और मुंह मोड़ा, और अनकरीब इससे वो बड़ा परहेजगार दूर रखा जाएगा। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल इसलिए देता है कि पाक हो जाए। सुभान अल्लाह। अब इस आयत पर
ہر مومن جو بھی اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر کون آئیں گے؟ ابو بکر صدیق، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر مار کھائی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہر موقع پر سب سے آگے، ہر موقع پر سب سے آگے، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں اور اس کا بدلہ دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں جب مارا گیا تھا تو کیا حالت تھی، کپڑے میں اٹھا کر لے کے گئے تھے اور سب کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب ہوش آئی ہے کہ ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، تو کیا بات کہی تھی انہوں نے کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لوں گا، خدا کی قسم میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو پھر وہ بیچاری ماں اپنے دل سے مجبور ہو کر پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دوڑ کے آئے، چوما مارا، ایسے جان ساتھ ساتھی، مگر وہ تو صرف اپنے اس رب کا شہر طلب کرنے کے لیے دیتا ہے۔ فَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جو سب سے بلند ہے، یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کس چیز کی قسم ہے جو نہیں کھائی کہ انسان کو سمجھ آ جائے، کوئی دل کو دیکھتا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ اب یہ کیا بات تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تہجد کے لیے نہ ہو سکے، بیمار ہو گئے تھے، اور اس موقع پر آپ جانتے ایک عورت آئی، اور وہ کون تھی؟ ابو لہب کی بیوی۔ اس نے کہا نعوذ باللہ، اے محمد مجھے امید ہے تمہارا شیطان تجھے چھوڑ گیا، تو 2-3 راتوں سے اٹھ نہیں سکا۔ تو اس سے یہ والی صورت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا، بس تو راضی ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا بس جگا دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تجھے راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ کہتے ہیں ڈپریشن کا بہترین علاج ہے، کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن چل رہی ہو، اس صورت کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان اس ڈپریشن سے نکل آتا ہے۔ اگر اللہ کے فرما بردار بن گئے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مشکل میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس لیکن یتیم پر سختی نہ کر، اس کو مت جھڑک۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل بس اسے بھی مت جھڑک، مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس سے بھی، آج کل رمضان میں تو بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن اپنے رب کی نعمت بس اسے بیان کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تیری کمر توڑ دی۔
वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये हर एक के लिए पैगाम है। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक इसी मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, तो जब तू फारिग हो जाए तो मेहनत कर। सुभान अल्लाह। हर एक को ये कहा जा रहा है अपना जो फारिग टाइम है वो कहाँ लगाना है, वो चैटिंग पे नहीं लगाना, वो फेसबुक पे बुक पे नहीं लगाना, कहाँ लगाना है, वो अपने रब की तरफ खड़े हो जाएं, कुरान खोल लें, तस्बीह हाथ पकड़ लें, क्योंकि जितना रब मोहब्बत करता है दुनिया में और कोई नहीं करता। हज़रत हुरैरा अन्हा की मौत का वक्त था, रोने लगे, क्या कह रहे हैं, मेरा सफर तवील है, ज़ादे राह कम है। सबसे ज्यादा अहदीस इनसे मरवी है। अक्सर हदीसें जो हम सुनाते हैं वो किसकी होती है, अब वो हुरैरा से रवायत शुदा, भूख बर्दाश्त की, माल और दौलत से दूर रहे, क्यों नहीं निकलते थे कसब कमाई के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये कि कोई बात मिस ना हो जाए। मेरा सफर तवील है, ज़ाहिर राह कम है, मैंने ऐसे टीले पर सुबह की जो जन्नत और जहन्नम की तरफ उड़ रहा है, मुझे इल्म नहीं मेरी मंजिल कौन सी है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, जब फारिग हो जरा सा टाइम मिलो तो फिर दौड़ो मेरी तरफ। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ ही बस रग़बत कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसके बाद और ज्यादा तलावत कुरान और सुजूद और रुकू में उन्होंने इजाफा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की और जैतून की, इस नबी का इलाका ईसा अलैहिस्सलाम का। वतूर सीनीन, इस नबी का इलाका कहाँ मुलाकात हुई थी अल्लाह से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। व हाज़ल बलदिल अमीन, इसका इलाका हज़रत इब्राहीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का की बात हो रही है, उस अमन वाले शहर की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बिलाशुबा यकीनन हमने इंसानों को सबसे अच्छी बनावट में पैदा किया। सुभान अल्लाह। पूरी मखलूक़ात में हमें कोई ऐसी मखलूक नजर नहीं आती जो अल्लाह ने क्वालिटीज इंसान के अंदर रखी हैं, जो सिफात उसके अंदर रखी हैं, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, और उसके अंदर खैर के पहलू कैसे रखे हैं। शर अगर बुरा बन जाए तो इससे बुरा कोई नहीं, और अगर अच्छा बन जाए तो फिर इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं। फी अहसनि तक़वीम, सबसे अच्छी बनावट में पैदा किया। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने इसे लौटाकर नीचों से सबसे नीचा कर दिया। अब ये हमारी मर्जी है, हम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, मगर वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए, तो इनके लिए खत्म ना होने वाला अजर, गैरु ममनून, सुभान अल्लाह, कभी मुनक़ता ना होगा। हज़रत उस्मान गनी का आज तक क्या चीज चल रही है, उनकी अकाउंट चल रहा है, कौन सा, किस चीज का, उनका उनका बाग था, बाग खजूरों का, और उससे चैरिटी आज तक हम सोचे 1500 साल हो गए कब्र में गए हुए। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, आज के बाद उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं देगी। अपनी जिंदगी में सबसे कीमती माल दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुनिया में दिखा दिया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे सत्ता देते। इसी तरह हज़रत हाजरा का अजर देख ले, आबाद किया था हज़रत इस्माइल ने हज़रत हाजरा ने, तो देख ले उसका बदल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे अता किया कि आज तक उस घर की रौनक देख। सदका जारिया देखें कैसे जारी है, जो एक नमाज पढ़ता है 1 लाख नमाजों का अजर पाता है। कितने खुशकिस्मत लोग हैं। और इसी तरह इमाम बुखारी की तरफ देखते हैं कैसे खुशकिस्मत थे, सारी जिंदगी दीन की खिदमत की, शादी नहीं की, हालांकि सुन्नत रसूल है, लेकिन हकीकत ये थी वो जिम्मेदारियां उठा नहीं करते थे, मुसलसल सफर में रहते थे।
تو आप देख लें कि सही बुखारी को कोट किया जाता है हमेशा। सबसे ज्यादा अथेंटिक अगर आपने लेनी है हदीस तो कौन सी होगी? क्या उम्मत तक के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी कुछ ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए कि जिनका सिलसिला क़यामत तक जारी गुजारी रहे। और इसके बाद कौन सी चीज है तुझे जज़ा के बारे में झुठलाने पर आमादा करती है? अलैहिस्सलाहु बि अहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं? बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो इस पर गवाह हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, अपने रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को एक जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ और तेरा रब भी सबसे ज्यादा करम वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, और वो जिसने कलम के साथ सिखाया। ये पहली आयत 5 कौन सी है? अल्लमल इंसान मा लम यअलम, उसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये पहली वही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि पढ़, इसी में खैर है, इसी में बचत है। तो चाहे कोई कितना ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन कुरान समझ सकता है, कुरान पढ़ सकता है, हदायत पा सकता है। और कलम के बारे में आया, कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और कहा कि लिख, तो उसने क़यामत तक के लिए सबकी तकदीरें लिख दी हैं। हरगिज़ नहीं, बेशक इंसान यकीनन हद से निकल जाता है इसलिए कि अपने आप को देखता है गनी हो गया, यकीनन तेरे रब ही की तरफ लौटना है। क्या तूने उस शख्स को देखा जो मना करता है? अबदन इज़ा सल्ला, जब एक बंदे को नमाज पढ़ता है, क्या तुमने देखा अगर वो हदायत पर हो? क्या उसने परहेजगारी का हुक्म दिया हो? क्या तुमने देखा अगर उस मना करने वाले ने झुठलाया और मुंह मोड़ा? तो क्या उसने ये न जाना, अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, क्या उसने ना जाना अल्लाह देख रहा है? कल्ला लम यंतह, हरगिज़ नहीं, यकीन अगर वो बाज ना आया तो हम जरूर इसे पेशानी के बालों के साथ घसीटेंगे। पेशानी के बालों के साथ जो झूठे हैं, खताकार हैं, इसके बारे में बात हो रही है। अबू जहल के बारे में, कि अबू जहल ने कसम खाई थी कि खुदा की कसम, अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर सजदा करते देख लिया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं। लात और उज़्ज़ा की कसम खा ली, मैं उनकी गर्दन नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं रोड डालूंगा। और जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ, क्या एकदम से पीछे हटने लगा। लोगों ने पूछा क्या हुआ तुझे, डर के खौफज़दा होकर? तो क्या बताया कि एक ऊंट था जिसके मुंह से आग निकल रही थी और करीब करके था कि मुझे खा जाए। और इसी तरह एक और हदीस में आता है कि मेरे उसके दरमियान आग की एक खंदक, बड़ा हौलनाक मंजर था, और एकदम पीछे घबरा के उठा। लेकिन आप सोचते हैं कितना बदनसीब, क्योंकि वह कलमा पढ़ लेता। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, बस वो अपनी मजलिस को बुला ले, अपने साथियों को बुला ले। वह सनद जबानिया, हम अनकरीब जहन्नम के फरिश्तों को बुला लेंगे। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, उसका कहना मत मान और सजदा कर और बहुत करीब हो जा। सुभान अल्लाह, और बहुत करीब हो जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, और तुम सजदे में दुआ ज्यादा किया करो। सजदों को अपने लंबा कर लें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सजदा कर और करीब हो जा, कुर्ब हासिल कर। एक दर्जा भी बुलंद होता है और क्या इनाम मिलता है, एक गुनाह भी माफ होता है और अजर भी लिखा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरा अल-क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बिलाशुबा हमने इसे कदर की रात में उतारा। सुभान अल्लाह,
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुझे किस चीज से मालूम करवाया कि कदर की रात क्या है। कदर की रात 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर अमर के मुतल्लिक उतरते हैं। किस रात में कुरान नाज़िल हुआ? लैलतुल क़द्र में। और लैलतुल क़द्र कब है? आप जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन पहले इत्तिकाफ किया और फिर लैलतुल क़द्र नहीं आई, क्योंकि उनको पहले यही बताया गया था कि रमजान में है। फिर उन्होंने 20 दिन बढ़ा दिए। जिब्रील अमीन ने बताया कि लैलतुल क़द्र नहीं आई। फिर उन्होंने 30 दिन का इत्तिकाफ किया और फिर बताई गई कि आखिरी अशरे में आती है। और फिर ये भी बताया गया 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। बहुत से लोग हैं जो बार बार ये कोट करते हैं कि 27वीं है, जिसके बारे में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया और उन्होंने कह दिया कि मुझे भुला दी गई है। तो ऐसा ना हो कि उम्मत एक रात को पकड़ ले, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इन 5 रातों में तलाश करो, तो हमें 5 रातों में ही तलाश करना है। और ये भी सेटिस्फाई नहीं होना कि मुझे लगता है उस दिन बारिश हुई थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुझे रात तो भुला दी गई है, लेकिन मुझे इतना याद है कि जिस दिन वो रात थी मैं सजदा कर रहा था तो मेरे माथे के ऊपर थोड़ा सा पानी था और थोड़ा सा कीचड़ था। तो अब अगर किसी दिन बारिश हो जाए और हम मुतमईन हो जाए कि लो जी मैंने तो लैलतुल क़द्र पा ली, नहीं, हमें 5 रातें ही मेहनत करनी है उसी तरह, क्योंकि कोई मालूम नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बारे में 100%। आप देखिए कि हमें कैसे पता चलता है, रात ठंडी होती है, कई रातें ठंडी हो जाती है, लेकिन जो सूरज का बताया गया वो उस पर हम देखेंगे ना कि अगले दिन जब रात खत्म हो रही होगी तो फिर क्या होगा, जाया हो जाएगा ना। इसलिए इन निशानियों की तरफ ना जाए। ये रात बहुत फैंसी है और कब से शुरू हो जाती है? मगरिब से शुरू हो जाती है और कब तक? हत्ता मसला फजर तक। तो अपना रोजा रखने के बाद भी जहन में ये हो कि अभी मेरे पास घंटे से ज्यादा ही होता है, 1.5 घंटा मेरे पास है। वो टाइम जो है वो भी बड़ा कीमती है। हर साल चेंज होती है, हर साल चेंज होती है, और इसीलिए कि 5 रातें इंसान इबादत कर सके। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छी एक रिसर्च है, आज बहुत सी फैली नहीं है। कुरान में, पूरे कुरान में अब रहमान 57 टाइम्स आया गिना जाए तो, और किस पे तकसीम होता है? 19 पे। 19 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड होता है 19 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसी तरह अल्लाह टोटल कुरान में 2698 दफा आया है, 698 दफा आया है। और ये भी 19 पे होता है, यानी मैंने बैठ के फिर इनको किया था एक दफा ना, तो ये 19 मल्टीप्लाई बाय 142, यानी 19 को आप 142 से जब डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। यानी आप एक दफा 99 हो जाता तो 19 से तकसीम ना होता। और पहली वही के हरूफ कितने थे? 19। और इसी तरह बिस्मिल्लाह के कितने हैं? 19। और कितनी दफा आया है टोटल बिस्मिल्लाह हर सूरत के साथ? 114 दफा। तो ये भी 19 पे होता है। और ये सूरह नमल में आ गया ना, सूरह नमल में आ गया। और अब रहीम कितनी दफा आया पूरे कुरान में? 114 दफा। और 114 भी 19 पे ही होता है। कोई किताब दुनिया में मुझे दिखा दो, यानी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इंसान सोच नहीं सकता कि ऐसी कैलकुलेशन के साथ एक एक लफ्ज जो है इस तरह कैलकुलेट किया गया। अगर आप उसको, उसकी तिलावत देखें तो इस जैसी हमें तिलावत या इस जैसा सुरूर हमें कहीं और नहीं मिलता। अगर आप मायनी पे गौर करें तो फिर ऐसा मायनी और ऐसा फहम हमें दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलता। और अगर रहनुमाई देखें कि अगर हदायत देने की बात हो तो ऐसे जिंदगी को बदल देने वाली है, इसकी एक आयत इंसान की जिंदगी को तब्दील कर देती। सुभान अल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अपनी किताब अता फरमाई। काश के ये हमारी जिंदगी का साथी बन जाए, हमारी खुशियों का, हमारे गमों का साथी बन जाए, हमारे दिन रात का साथी बन जाए। तो वो जो रात है उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं? फरिश्ते उतरते हैं। इसी तरह किसी ने कहा कि इंसान अकड़ अकड़ के बाजारों में चलता है, क्या उसको मालूम नहीं उसी बाजार में उसका कफन भी तैयार है। तो ये जो रात है ना,
उस दिन हमारी ही तकदीरों के फैसले हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला जिंदगी और मौत के उस वक्त फैसले करते हैं और फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं, और फरिश्ते जो हैं वो देखते हैं, और हमारी दुआएं हैं, हमारी हाजात हैं, उनको देखकर अल्लाह सुब्हाना व तआला में हमारी रोजी में खुशहाली लाते हैं। तो हमारे मुकद्दरों के फैसले हो रहे होते हैं, तो इसलिए उस रात को बहुत कीमती जानना चाहिए। कोई पता नहीं है हमारी आखिरी रात हो। सलामुन हिया हत्ता मत्लाइल फजर, कब तक वो रात? फजर तुलू होने तक सरासर सलामती ही सलामती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम युफिनल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। और वो लोग जिन्होंने अहले किताब और मुश्रिकीन में से कुफ्र किया, बाज आने वाले न थे यहाँ तक कि इनके पास खुली दलील आए। अंत में आप करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब से फरमाया, ए अबी बिन काब, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है मैं तुम्हें ये सूरत अल-बय्यना पढ़ के सुनाऊं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू ताला का हर सहाबी के साथ एक मोहब्बत का कैसा अंदाज है। तो उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया? कहा हाँ। इस पर वो रोने लगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से एक रसूल जो पाक सहीफे पढ़कर सुनाए, जिनमें लिखे हुए हुकूम एहकाम हो, और वो लोग जिन्हें किताब दी गई जुदा जुदा नहीं हुए, मगर इसके बाद इनके पास खुली दलील आ गई और इन्हें इसके सिवा हुक्म नहीं दिया गया कि वो अल्लाह की इबादत करें, इस हाल में कि इसके लिए दीन को खालिज करने वाले, एक तरफ होने वाले और नमाज कायम करें, ज़कात दें, और यही मजबूत मिल्लत का दीन है। बेशक वो लोग जिन्होंने अहले किताब और मुशरिकीन में से कुफ्र किया जहन्नम की आग में होंगे, इसमें हमेशा रहने वाले हैं। यही लोग मखलूक में सबसे बुरे हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए, वही मखलूक में सबसे बेहतर है। एक हबशी लॉन्डी का वाकया बहुत ही खूबसूरत है। मुख्तसर मैं आपको बता देती हूँ कि एक दफा ये हुआ कि वो अपने जहाँ पे वो काम करती थी, एक बच्चे को नहला रही थी, तो एक कीमती हार था जो बच्चे का था, तो उसने उतार के रखा, और इस दौरान में एक चील आई और वो उठा के ले गई। अब जैसे ही बच्चे को नहलाया और वो हार ढूंढने लगी, तो वो हार नहीं मिला नहीं। अब जाहिर है लॉन्डी थी, जो मालिक थे उन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती की, और बहुत ज्यादा सब लोग इकट्ठे हो गए और उसको सजा देना चाहते थे, और यहाँ तक कह दिया कि इसको चेक करो, इसके कपड़े से बहना कर दो। तो कहती उस वक्त मैं हुई और मैंने आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठाई और कहा कि ए आसमान वाले रब, अगर तू सच्चा है तो आज तू मेरे लिए कोई मुर्दा दिखा दे। कहते अभी ये लड़ाई हो ही रही थी और ये शोर डला हुआ था, इतने में एक चील आई और उसने वो हार दरमियान मिला के फेंक दिया। तो कहती है कि बस उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा कि चलो तुमसे गलती नहीं हुई, हमसे गलती हुई है, माफ कर दो और रुक जाओ। उसके बाद कहती मैंने कहा अब मैं यहाँ नहीं रहती। कहती वहां से फिर मैं निकली, मैं मदीना पहुंची और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मस्जिद नबवी में ठहरा लिया। और कहती है फिर मैं अज़वाज मुतहरात के घरों में आया जाया करती थी। एक दिन कहती है मैंने हज़रत आयशा से कहा कि जिस रोज मैं ईमान लाई थी, वो दिन मेरी जिंदगी का बड़ा हसीन दिन था और मैंने अपने रब के बड़े बड़े मोजज़े देखे। उन्होंने पूछा क्या हुआ था, तो उस दिन बताया कि मेरे साथ ये मामला हुआ था। तो बड़ी वो नेक खातून थी और थोड़ा अर्सा वो जिंदा रही और उसके बाद वो फौत हो गई और मस्जिद नबी को सफाई किया करती थी। तो जब वो फौत हो गई, साहबा कराम ने रात के वक्त थी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, उनको दफना दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना डले, नमाज जनाजा अदा की और उसको दफना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो नजर नहीं आ रही, पूछा तुमने बताया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को फौत हो गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे उठा दे, मस्जिद नबी की खिदमतगार और ईमान लाने वाली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसकी साहिबाना नमाज जनाजा अदा की। तो एक लौंडी जब वो ईमान वाली हो जाती है, तो आप देखिए वो कितनी कीमती।
सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए, वही मखलूक में सबसे बेहतर हैं। इनका बदला इनके रब के यहाँ हमेशा रहने के बागात हैं, जिनके तले नहरें बहती हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन। तो ये क्या यहाँ पर क्यों आया, ये सिर्फ सहाबा कराम के लिए नहीं, ये क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है। जो अल्लाह के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे राजी हो गया और वो रब से राजी हो जाएंगे। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। ऐसा कौन कर सकेगा, जो अपने रब से डरता है, उसकी नाराजगी से डरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। जब जमीन सख्त हिला दी जाएगी, और इसका सख्त हिलाया जाना। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। और जमीन अपने बोझ निकाल कर बाहर कर देगी। आज कितने कितने बोझ लिए बैठी है जमीन, बड़े बड़े गुनाह हो रहे हैं, और वो चाहे तो फटे, और वो जो शख्स गुनाह कर रहा है उसके अंदर चला जाए। कोई मुश्किल है रब्बे कायनात के लिए, और उस जमीन के लिए भी कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन रब का हुक्म है कि इनको भी मौका दो। आपने वो देखा होगा वो वीडियो जिसमें डांस कर रहे थे सब लोग, और अचानक जमीन फटी और सब अंदर धंस गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज तो हमें अपनी आंखों में सब कुछ दिखाते हैं, क्या होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, आज जो खामोश है ना, उस रोज अपने सारे बोझ उतार देगी, सारी गवाहियां हाजिर कर देगी, और उस दिन गवाही खुद भी देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा इसे क्या हो गया। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। इस दिन वो अपनी खबरें बयान करेगी। तो ये जो जमीन के दिल टुकड़ों पर बैठकर हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये भी गवाही के लिए उस रोज हाजिर किए जाएंगे। इसलिए दुआ करें कि ऐसे टुकड़े ज्यादा हो जहाँ पे हम नेकियों के लिए आते हैं, नेकियों के लिए बैठते हैं, और अपने घरों को चल के जाते हैं, कि जो गुनाह की जगह इंसान के लिए आजमाइश बन जाएगी। तो उसने वो अपनी खबरें बयान करेगी, इसलिए कि तेरे रब ने इसे वही की होगी। या उस दिन लोग अलग अलग होकर वापस लौटेंगे। एक जगह पे आता है, इब्न तैमिया ने अपनी किताब में लिखा है कि जब अपने ऊपर जना होते हुए देखती है, तो कहते हैं सबसे ज्यादा उसको तकलीफ महसूस होती है, और दौड़ती हुई बारगाह इलाही में जाती है कि अल्लाह मेरे ऊपर ये गुनाह हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अभी तू शुक्र है। तो ये सब जमीन आसमान ये खूब गवाह है। उस दिन लोग अलग अलग होकर वापस लौटेंगे, ताकि इन्हें इनके अमाल दिखाए जाएं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। तो जो शख्स एक जर्रा बराबर नेकी करेगा, उसे देखेगा। कितना मेहरबान है वो रब, कि जर्रों को भी काउंट कर करके रखता है। ये जर्रे जो है ये पहाड़ के बराबर हमें करके वापस लौटाएगा। अल्लाह से ज्यादा कदरदान कोई नहीं। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और जो शख्स एक जर्रा बराबर बुराई करेगा, उसे भी देख लेगा। अहले ईमान को कहते हैं सजा उस वक्त मिलेगी जब ये शर्तें हो कि वो कबीरा गुनाह करता हो, और फिर ये कि वो तौबा किए बगैर अगर मर जाए, फिर उसको सजा मिलेगी। और उसके हक में अगर कोई सिफारिश ना हो तो भी उसको सजा मिलेगी। वरना अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, गफूर रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाति ज़बहा फलमुरियाति क़दहा। कसम है इन घोड़ों की जो पेट और सीने से आवाज निकालते हुए दौड़ने वाले हैं, फिर जो सिम मार कर चिंगारियां निकालने वाले हैं, फिर जो सुबह के वक्त हमला करने वाले हैं, फिर उसके साथ गुबार उड़ाते हैं, फिर वो उस बड़ी जमात के दरमियान जा घुसते हैं। यहाँ पे क्यों जिक्र किया गया कि इनका मालिक तो इनको सिर्फ एक खुराक देता है, और वो खिदमत करते हैं दौड़ दौड़ के। उनका मालिक उनको अगर कहता है ना कि सामने मैदानी जंग में चले जाओ, और वहां पे तलवारें भी चल रही हों, तो सोचे समझे बगैर फौरन उधर को निकल जाते हैं। अगर कोई डरपोक जानवर होता तो क्या कभी जंगों में इस्तेमाल हो सकता घोड़ा। बहादुर है सिर्फ ये कि उसके मालिक ने उसको हुक्म दिया है। तो हमारा मालिक तो हमें पैदा करने वाला, पालने वाला, हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला, हम कितना दौड़ते हैं उसके अहकामात पर, हम कितना अमल करने वाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यहाँ पर इसकी मिसाल देकर समझा रहे हैं।
इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है, और बेशक वो इस बात का यकीनन गवाह है, और बेशक वो माल की मोहब्बत में यकीनन बहुत सख्त है। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर, क्या वो नहीं जानता जब कब्रों में से जो कुछ है बाहर निकाल फेंका जाएगा, और जो सीनों में है जाहिर कर दिया जाएगा। बेशक इन तरफ इस दिन इनके मुतल्लिक यकीनन खूब खबर रखने वाला है। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, जो सीने हैं उनके भी सारे राज निकल आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ारिया तुमल क़ारिया, और खटखटाने वाली, क्या है वो खटखटाने वाली, तुझे किस चीज से मालूम किया, तो खटखटाने वाली क्या है, जिससे लोग बिखरे हुए परमाणु की तरह हो जाएंगे, और पहाड़ धुंधी हुई रंगीन ऊन की तरह, लेकिन वो शख्स जिसके पर्दे भारी हुए, फहुवा फी ईशतिन राज़िया, तो खुशी की जिंदगी में होगा। लेकिन वो शख्स जिसके पर्दे हल्के हुए, तो उसकी माँ काविया है। इंसान अपनी माँ से जुदा नहीं हो सकता ना, तो फिर क्या है कि उसकी माँ का जीना मरना अब जहन्नम में ही होगा। वमा अदराका मा हिया, और तुझे किस चीज से मालूम करवाया वो क्या है, नारुन हामिया, एक सख्त गर्म आग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें एक दूसरे से ज्यादा हासिल करने की हिर्स ने गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास माल की भरी हुई दो बाजियां हो तो वो तीसरी की तलाश करेगा, और आदम के बेटे के पेट के को कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भरती। अल्लाह उसकी तरफ पलट आता है जो वापस पलट आए। फिर क्या है, इंसान और की तलाश में रहता है, पता ही नहीं कि आगे खबर आ गई। हर किस नहीं तुम जल्दी जान लोगे, फिर हर किस नहीं तुम जल्दी जान लोगे, हर किस नहीं काश तुम जान लेते यकीन का जानना, और यकीनन तुम जहन्नम को देखोगे, फिर यकीनन तुम इसे यकीन की आंख से देख लोगे, फिर तुमसे इन नेमतों के बारे में जरूर पूछा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम कि बेशक हर इंसान घाटे में है, हर इंसान खसारे में है, हर एक की जिंदगी खत्म हो रही है। इस मिसाल को कैसे समझेंगे कि जैसे कोई बर्फ बेचने वाला होता है ना, तो उसको साफ नजर आ रहा था कितनी तेजी से बर्फ निकल रही है, उसको ये फिक्र होती है जल्दी से बिक जाए, या रेत अपने हाथ से पकड़े तो कितनी तेजी से निकलती है। तो ऐसे ही ये वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। सब लोग खसारे में, मगर कौन, इल्लल्लज़ीना आमन, जो लोग ईमान ले आए, वो आमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए, वतवस्सौ बिल हक, और एक दूसरे को वसीयत की, किसकी, हक की, हक का पैगाम दिया, हक का पैगाम हर एक तक पहुंचाते रहे, उनकी सारी जिंदगी इसी में गुजर गई। वतवासौ बिल सब्र, और जब हक का पैगाम देंगे तो क्या होगा कि फिर रिएक्शन आएगा, तो सब्र करना पड़ेगा। तो इसलिए वे दूसरे को तलकीन भी करते हैं सब्र की। सहाबा कराम की आदत थी कि जब एक दूसरे से जुदा होते थे तो ये सूरत सुनाया करते थे। इसका क्या मतलब है कि छोटी सी जिंदगी सब पसारे में है, आ जाओ, कम टू द पॉइंट, ऐसे काम करो जिनका आगे जाके फायदा होगा, और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ, और फिर सब्र करो, और बस हमसे मुसाफिर। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, बड़ी हलाकत है हर बहुत ताना देने वाले और बहुत ऐब लगाने वाले के लिए। वैल क्या है, जहन्नम की वादी का नाम है, जो ताने मारता है अपने ही मुसलमान बहन भाइयों को, जीने नहीं देता, जिंदगी आजाद बनाई हुई है। बात बात पे हर एक को यही फिक्र होती है कि पता नहीं अब उसका क्या रिएक्शन। खुशी के मौके पर भी
मोमिन जो गमगीन रहता है कि पता नहीं अब इसने इस मौके पर क्या बात कर देनी है। कोई अजीज रिश्तेदार आ जाए तो उसको एक ही फिक्र होती है ये कोई उनके कान में गलत बात न करते। बाद लोग होते हैं ना ऐसे इतना बात, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं उनके लिए बड़ी हलाकत है। अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, और जिसने माल जमा किया और इसे गिन गिन कर रखा। मौलाना रूमी ने कहा कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो ताकि बहुत बोलने वालों की तरह खामोशी भी सुन लो। तो ये थोड़ा सा वक्त है ना कि जुबान अच्छे कामों पर लगे। मोमिन जोड़ने वाला होता है, तोड़ने वाला नहीं होता, काटने वाला नहीं होता। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो गुमान करता है इसके माल ने इसे हमेशा रहने वाला बना दिया। हर गिज नहीं, यकीनन वो जरूर हुतमा में फेंका जाएगा। और जिसे किस चीज ने मालूम करवाया तो हुतमा क्या है? अल्लाह की भड़काई हुई आग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो दिलों पर अल्लाह की तत्तालिउ अलल अफिदा, वो जो दिलों पर झांकती है, यकीनन वो इस पर हर तरफ से बंद की हुई है लंबे लंबे सुकूनों। तो यहाँ पे जो खास तौर पे बात की गई वो क्या थी कि वो जुबान का जो गुनाह है उसमें मुब्तला है और अपने माल को खर्च नहीं करते, तो उनको फिर जहन्नम में डाला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तूने नहीं देखा तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? इस नियत से आया था अब्राहा, नाउज़ बिल्लाह, खाना काबा को ढाने के लिए आया था। उसने गिरजा बनाया और वो चाहता था कि जैसे लोग दौड़ दौड़ के खाना काबा की ज़ियारत को आते हैं वैसे वहां गिरजे में आए, इबादत करें। जब देखा कोई नहीं आया तो गुस्से में आया और अपने साथ 13 हाथियों को भी लाया और बहुत बड़ी फौज लेकर आया। अल्लाह सुब्हान ताला ने इसका जो हाल बनाया, मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान में वादी में पहुंचा तो अल्लाह सुब्हान ताला ने वहां पर परिंदों को पेश किया। हर परिंदे की चोंच में भी और उसके पंजों में भी क्या थे? छोटे छोटे कंकर थे। और अल्लाह सुब्हान ताला ने इन हाथी वालों का वो हशर किया जो यहाँ हमें बताया जा रहा है। अलम यजअल कैदहु फी तदलील, क्या उसने उनकी तदबीर को बेकार नहीं कर दिया और इन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो इन पर मुंजर की तरह पकी हुई बच्चे की पत्थरियां फेंकते थे, तो उसने इन्हें खाए हुए फूल की तरह कर दिया। इससे क्या पता चलता है अल्लाह की तो छोटे छोटे परिंदों से आप देखिए इतने बड़े बड़े हाथियों को मार दिया। कोई बड़े लश्कर अल्लाह को बुलाने नहीं पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाफी कुरैश इलाफिहिम रहमतश्शिताइ वस्सैफ, कुरैश के दिल में मोहब्बत डालने की वजह से और इनके दिल में सर्दी और गर्मी के सफर की मोहब्बत डालने की वजह से गर्मी में शाम की तरफ जाते, सर्दी में यमन की तरफ जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा कबीला था? कुरैश का। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इनके दिल में सफर की मोहब्बत डाल दी, इसी पर इनकी गुजरान थी। तो इनका लाजिम है घर के रब की इबादत करें। वो जिसने इन्हें भूख में बचा कर खाना दिया और खौफ से बचा कर अमन दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तूने उस शख्स को देखा जो जज़ा को झुठलाता है? तो यही है जो यतीम को सबके देता है। बार बार यतीम की बात आती है, ज्यादती न करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर उसका बाप दे दिया है तो इतने लोगों पर जिम्मेदारी डाल दी है और जो उनका माल खाएगा, क्या कहा गया, वो अपने पेट में जहन्नम की आग डाल रहा है। तो उनके साथ आला इखलाक का मुजाहरा भी करना है, उनके माल की हिफाजत भी करनी है और उनका कभी भी कोई बुरा नहीं चाहना। तो यही है जो यतीम को सिक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। बस इन नमाजियों के लिए बड़ी हलाकत है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। लेकिन के बारे में आ रहा है, नमाजी हैं लेकिन नमाज से गाफिल हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं। अल्लाह हम सबको माफ कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नमाज मुनाफिक की नमाज है, वो बैठा सूरज को देखता रहता है यहाँ तक कि जब वो शैतान की दो सीखों के दरमियान आ जाता है तो उठकर 4 सूरे मार लेता है। इसमें अल्लाह को याद नहीं करता मगर थोड़ा, ना खुशू ना खुजू, ना अल्लाह की तरफ कोई ध्यान, दुनिया के हिसाब किताब में नमाज गुजार दी।
अल्लज़ीना हुम यराऊन, वो जो दिखावा करते हैं। और किसकी? और कौन है जिनकी नमाजें हलाकत में डालेंगी? जो दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते। वयमनाऊनल माऊन, और आम बरतने की चीजें भी नहीं देते। छोटी छोटी कुछ मांगने आ जाए तो कहते हैं नहीं हमारे पास नहीं है, हालांकि घर में मौजूद होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर, बिलाशुबा हमने तुझे कौसर अता की। सुभान अल्लाह। कौसर का क्या मतलब है? कौसर का मतलब ये है कि कसीर औलाद, कसीर औलाद, और साथ में हौज़ कौसर भी। क्योंकि क्या कहते थे दुश्मन, ये तो अख्तर हैं, नाउज़ुबिल्लाह, इनके तो इनकी तो जड़ी कट गई, इनके तो बच्चे जिंदा नहीं बचते, खुश होते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हमने इनको कौसर अता कर दी। और फिर हम भी तो अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से हैं। क्या ख्याल है आपका? हर मोमिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम बेटियां हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रूहानी बेटियां। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुमको कौसर अता कर दी। कहते हैं कि सतह जमीन पर बहने वाली नहर होगी जिसकी मिट्टी खालिस कस्तूरी की, जिसकी कंकरियां मोती होंगे, जिसके सोने और चांदी के परनाले होंगे, जिसका पानी ठंडा मीठा खुशबूदार होगा। जो इससे महरूम रहा वो हर खैर से महरूम रहेगा। कौन महरूम रहेगा? जो बिद्दत करने वाले, वो किया जाएगा ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस याद करें। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में चला जा रहा था, अचानक नहर आ गई जिसके किनारे खूब थे, मोतियों के कुबे थे। सुभान अल्लाह, बड़े बड़े मोतियों के कुबे बने हुए होंगे। मैंने कहा है जिब्रील ये क्या है? उन्होंने फरमाया ये कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई। फिर देखा तो इसकी खुशबू या मट्टी महकने वाली खुशबू की तरह थी। और इस तरह एक और हमें हदीस मिलती है, इसको भी हम देख लेते हैं। उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उसके बर्तन आसमान के तारों से ज्यादा हैं। याद रखो, तारे भी इस रात के जो तारीख हो और बादल के बगैर हो। जन्नत के बर्तन ऐसे जो इनसे पिएगा कभी प्यासा ना होगा, और उस वक्त की आखिर तक जो इस पर गुजरेगा, यानी हशर में जब जो पानी पी लेगा उसको प्यास नहीं लगेगी। इस हौज में जन्नत से दो नाले गुजरते हैं। तो क्या पता चला कि जो जन्नत में नहर कौसर है उसी की एक शाख है कि जो हशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी। दो नाले जन्नत वाली नहर से इसमें गिर रहे हैं, जो इनसे पिएगा कभी प्यासा ना होगा। इसका अर्थ इसके तूल के बराबर है जितना अरमान से ईला तक का फासला है, और इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। सुभान अल्लाह। छोटी सी सूरत है, इसके बारे में बहुत तहकीक की गई और बड़ी अजीब चीज सामने आई कि सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत है। इसके कुल हरूफ जो हैं वो 10 हैं। पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी, 10 हरूफ टोटल जो है ना, 3 है तो हर एक की कितने हैं? एक एक जो हर्फ है वो 10 ही है। वो हर जो एक दफा आए वो 10 है। तो सबसे ज्यादा तकरार से लफ्ज आया वो अलिफ है, वो भी कितनी दफा आया? वो भी 10 दफा आया। तमाम आयात का इख्तिताम रे पर होता है और इसकी कुल तादाद 10 है। छोटी सी सूरत है कुछ, और 10वां हर्फ है जो रे है, वो क्या है? वो भी 10वां हर्फ है। और वो सूरत कुरान में जिनका इख्तिताम रे पर होता है वो भी कितनी है? वो भी 10 है। सुभान अल्लाह। इन्ना वाली दो सूरतें हैं, सूरह कदर और दूसरी सूरह कौसर। 97 नंबर पर कदर अभी हमने पढ़ी, और ये वाली कौसर, इसके दरमियान जो सूरतें हैं वो कितनी होगी? 10 है। सुभान अल्लाह। और सूरह कदर में भी रा कितनी दफा आया? 10 मरतबा आया। एक एक हर्फ कितना कीमती है। सुभान अल्लाह। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, बस क्या कर, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, यकीनन तेरा दुश्मन ही दावल है। आज बताएं, दुश्मनों को तो याद करता है, उनकी औलादों को याद करता है। कहाँ गया अबू जहल और कहाँ गया अबू लहब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तो क्या कहा जा रहा है, बस टेंशन ना लो। टेंशन को खत्म करने का क्या तरीका, लोगों की बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं, बल्कि क्या करें, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। क्या मेरा, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए, अल्लाह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दे ए काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। इस सूरत को क्या कहा गया, ये चौथाई कुरान के बराबर है। यानी इसको 4 दफा पढ़ लेंगे तो क्या होगा, एक कुरान का अजर मिलेगा। चौथाई 3 जो है वो कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतें यानी सूरह काफिरून और सूरह इखलास फजर की 2 रकअतों सुन्नतों में पढ़ी, और वैसे वितर में उसकी दूसरी रकअत में सूरह काफिरून पढ़ी जाती है। और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं इसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी इबादत तुमने की। अब ये क्यों सूरत नाज़िल की थी कि मुशरिकीन ने आकर क्या कहा कि ऐसा करते 1 साल आप हमारे माबूदों की इबादत कर लें और फिर हम आपकी कर लिया करें। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, एक लम्हे के लिए भी नहीं, ना ही मैं इसकी इबादत करने वाला हूँ तुमने इबादत की, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए, वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तुम लोगों को देखे कि वो अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। फस्तग़फिर बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, तो अपने रब की हमद के साथ तस्बीह कर और उससे बख्शिश मांग। जब ये नाज़िल हुई तो बकर सदीक रोने लगे। सहाबा कराम कहने लगे आप पता नहीं क्यों रो रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि मदद आ गई, फतह हो गई। इससे क्या पता चला जिस मिशन पे आपको भेजा गया था वो मिशन कंप्लीट हो गया, अब आपके जाने का वक्त है। और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, आप अपने रब के हमद के साथ तस्बीह करें और साथ क्या करें, वस्तग़फिर, और बख्शिश मांग। तो फिर हमें कितना मांगना चाहिए, हमें अल्लाह की तस्बीह कितनी करनी चाहिए। और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़िल होने के बाद सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली पढ़ने लग गए थे। कहाँ, रुकू में और सजदे में। छोटी दुआ के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये छोड़ी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो पढ़ते हैं उनके लिए मुबारक, और जो नहीं पढ़ते वो उनको याद करें। सुब्हानका अल्लाहुम्मा, सुब्हानका रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, और अल्लाहुम्मा भी कई जगह पे आता है सुब्हानक अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इग़फिर। यानी इसमें आप देखें ना, पहले तस्बीह है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा भी कह सकते हैं, सुब्हानक रब्बना भी कह सकते हैं, और जो आखिरी है वो क्या है, अल्लाहुम्मा इग़फिर। तो जो हम पढ़ते हैं उससे तस्बीह होती है, उससे बख्शिश की दुआ नहीं होती। और जब हम हर रोज रुकू में भी बख्शिश की दुआ करेंगे, सजदे में भी बख्शिश की दुआ करेंगे, एक रूटीन बन जाएगी हमारी, तो हम दिन में कितनी दफा कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए और वो खुद भी हलाक हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना उसके काम उसका माल आया और जो कुछ उसने कमाया। बहुत माल था, बहुत कहते हैं कि खूबसूरत इंसान था, लेकिन बदकिस्मत के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे यहाँ पर कहा कि दोनों हाथ टूट गए, यानी उसका माल भी खत्म, उसकी औलाद भी उसकी किसी काम ना आई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो शोले वाली आग में दाखिल होगा। अब किस वजह से ये मरा था, कुछ याद है किसी को? गज़वाए बदर में जब मुसलमानों को फतह हुई तो इस गम में ये फिर बीमार हुआ था, और उसके बाद कहते इसको चीचक निकली और सब घर वाले रिश्तेदार सब दूर हो गए, नफरत कर रहे थे।
और फिर जब ये मर गया तो फिर कोई वो दफना नहीं रहा था। फिर आखिरकार लोगों ने उसके बेटों को आग दिलाई और उन्होंने कोई हबशी को बुलाया और इसको किसी स्टिक के साथ एक गड्ढे में फेंक दिया गया, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कुछ अरसे बाद ही। अब देखिए कितनी जल्दी, यानी गज़वा बदर शुरू में ही हो गई और कितनी जल्दी वो दुनिया से चला गया। अनकरीब वो शोले वाली आग में दाखिल होगा, अकेला नहीं, वम्रअतुहु हम्मलतल हतब, और इसकी बीवी भी आग में दाखिल होगी, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, जो ईंधन उठाने वाली है और इसकी गर्दन में मजबूत बड़ी हुई रस्सी होगी। यानी यहाँ पे तो रस्सी कहा गया, कहते हैं यहाँ पर भी वो जो झाड़ियां वाला लाती थी तो वो रस्सी के साथ बांध के लाती थी, वही रस्सी इसके गले में फिरी और मर गई। लेकिन क़यामत वाले दिन अब इसके गले में तो होगी रस्सी, आम रस्सी नहीं होगी, तो क्या होगी वहां पे तो जंजीरें होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह के नाम से कह दे वो एक है। क्या कहा गया इसको, इस सूरत को एक तिहाई के बराबर कुरान के सूरह इखलास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कसम खाई है, इस सूरत कुरान के तिहाई हिस्से के बराबर है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे पूछो, एक शख्स ने आकर कहा कि वो हर रोज हर नमाज में पढ़ती सूरह इखलास। उन्होंने कहा पूछो वो ऐसा क्यों करता है। लोगों ने बताया वो इसलिए करता है कि मुझे मोहब्बत है इससे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, फिर अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। लोगों ने क्या कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह का नसब बयान करें। अल्लाह ने ये सूरत नाज़िल कर दी, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। समझ कहते हैं वो सरदार जिससे कोई बरतर नहीं, कोई भी बरतर नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कभी कोई एक उसके बराबर का है, कोई एक भी नहीं, अहद कोई भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल-फलक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने वो आयात नहीं देखी जो आज रात नाज़िल की गई, जिनकी मिसल कभी नहीं देखी गई। वो सूरह फलक और सूरह नास है। और जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतर वो चीज ना बताऊं जिसके साथ पनाह पकड़ने वाले पनाह पकड़ते हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद और मौज़तैन सुबह शाम 3-3 मरतबा कह कि तुझे हर चीज से काफी हो जाए। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों के नाज़िल होने से पहले जिन्नों और इंसानों की नजर से पनाह मांगा करते थे। जब ये नाज़िल होगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पढ़ना मामूल बना लिया और उनको फिर छोड़ दिया। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, तो कह मैं मखलूक के रब की पनाह पकड़ता हूँ। अब देखिए कि इंसान जब किसी मुश्किल में होता है तो सबसे पहले किसकी पनाह पकड़ता है, पहले अपने वालिदैन को बुलाता है। बच्चा जब खतरे में होता है और फिर अगर वालिदैन ना कर सके तो बादशाह को बुलाया जाता है। तो ये बादशाहों का बादशाह, फिर हम किसकी पनाह पकड़ेंगे, तो क्या मैं मखलूक के रब की पनाह पकड़ता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। आप जानते हैं कि रात में ऐसे काम जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, शर जो है वो ज्यादा फैलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कत्ल करने की साजिश की गई थी वो भी क्या थी, वो रात को थी। और इसी तरह जितने भी जानवर हैं खतरनाक किस्म के, वो भी सब रात को निकलते हैं, सांप बिच्छू ये सब रात को निकलते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स कहते हैं कि जदीद तहकीक से पता चला है कि जो जरासीम है वो भी रात को ज्यादा फैलते हैं। जैसे मुंह के अंदर कहते हैं अगर आप ब्रश करके नहीं सोते तो अंधेरा चाहिए होता है ना बैक्टीरिया को, और उसको साथ में थोड़ी सी नमी चाहिए होती है, तो वो पूरा एटमॉस्फेयर बन जाता है। और अगर मीठा खाया हुआ है इसलिए हमेशा डॉक्टर कहते हैं अपने दांतों को साफ करके। तो जो बीमारियां फैलती हैं वो भी कब फैलती है, वो रात को फैलती है। तो कितनी प्यारी बात है, हर तरह की बीमारी
अल्लाह सुब्हानहू व तआला रूहानी भी और जिस्मानी भी बचा लेंगे। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और गिरहों में सूखने वालियों की शर से। जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू कर दिया गया था। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से। और हसद आप जानते हैं कि जो पहला गुनाह हुआ था वो भी किस वजह से हुआ था? हसद की वजह से हुआ था। बरादराने यूसुफ ने क्यों निकाला था? हसद की वजह से निकाला था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूदी क्यों खिलाफ हो गए थे? हसद की वजह से। तो बीमारियों की जड़ है, बुराइयों की जड़ है। इसलिए क्या कहा गया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें वो कलमात सिखा दिए कि जो हमसे हसद करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। तू कह मैं पनाह पकड़ता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की और लोगों के माबूद की। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले की शर से जो हट हट कराने वाला है। यहाँ पे खास तौर पर शैतान की तरफ इशारा है। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे कुरान का जो इख्तिताम किया है, इस तरह किया है, शैतान से बचने का हमें तरीका बता दिया कि हम हमारा बाकी दुनिया के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन है कौन सा है? वो शैतान है। तो इन दोनों सूरतों को हमने अपना साथी बना लेना और नमाज के बाद भी इनको पढ़ना चाहिए और सुबह शाम को फिर लाजमी तौर पर इनको पढ़ा जाए। वसवसा डालने वाले के शर से जो हट हट कर आने वाला है, बार बार आता है। वही हदीस लंबी वाली याद कर लिया, अज़ान होती है तो क्या होता है? भागता है। जैसी बंद होती है फौरन आता है, जैसी तकबीर कही जाती है फिर भागता है, और जैसी नमाज शुरू हो जाती है तो बस फिर आता है और दिलों में आके फिर डालता है। वो जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी। इसी तरह हमें दुआ सिखाई गई, वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। हम अपने नफ्स की बुराइयों और अपने अमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इकबाल का एक शेर है, इकबाल ठिकाना है इबादत कुछ, इकबाल कबर ठिकाना है इबादत कुछ तो कर। रवायत है खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं कर। तो अल्लाह के घर जाना है तो फिर क्या करना है? कुछ तो तैयारी करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह में तौफीक की, पूरा महीना हम यहाँ आकर बैठे, अल्लाह के कलाम को सुना, समझा। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमारे दिलों की अब कैफियत है, पूरे 11 महीने हमारे दिलों की ऐसी ही कैफियत रहे। इमाम हसन बसरी फरमाया करते थे, कब्र इंसान की चर्बी और गोश्त खा जाती है लेकिन ईमान नहीं। तो हमें अपना वक्त इस पे लगाना चाहिए अपने ईमान को बढ़ाने के लिए। एक मर्तबा इसी तरह कोई गया बाजार के अंदर, तो दुकानें बंद थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या वजह, आज तुम लोग की ईद है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हसन अल बसरी खिताब कर रही है। तो सब दुकानें बंद थी। तो आज दिल के साथ की मोहब्बत हमारी खत्म हो गई है। तो अपने हमें दुनिया में किस चीज की फिक्र होती है? अपने बदन की। तो बदन और चर्बी क्या होगा? मिट्टी में जाके खत्म हो जाएंगे। चीजें बाकी जो दुनिया की जिनके ऊपर हम इतना वक्त लगाते रहते हैं, वो तो हम अपनी आंखों से देखते हैं सब कुछ यही, और इंसान देखता रहता है कि अच्छा ये कितने शौक से लाई थी, ये तो फलां से मंगवाई थी, ये तो फलां मुल्क से लाई थी। बाद लोगों को कितना शौक होता है अपने घर सजाने का, संवारने का। बाद लोगों को अपनी ड्रेसिंग का बहुत फिक्र होती है कि हमसे ज्यादा हसीन कोई नजर ना आए। तो हमें क्या फिक्र करनी है? ये सब नेमतें हमें दुनिया में जो मिली हैं, इससे कई कई गुना, लाखों गुना बढ़ा के दे दी जाएंगी। असल चीज जिस पे हमने मेहनत करनी है वो अपने ईमान में इजाफा, और कुरान से बेहतर और कोई किताब हो नहीं सकती। तो इसके साथ जुड़ जाएं, इसको समझने वाले बन जाएं, इसको पकड़ लें, इससे दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी।
بڑی پیاری بات کا بڑا ٹھکانا ہے عبادت، کچھ تو کر اقبال کی شعروں میں آپ دیکھیے چھوٹی سی بات میں روایت ہے خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں سکتے، کوئی پتہ نہیں کس کی باری پہلے آنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ ٹائم تھوڑا چنا کہاں ہے ڈائری، آپ پتا کریں کہاں ہے، یہاں تو نہیں ہوئی ڈائری۔ اللہ کریم سب کے نام یاد کریں، ڈائری میں کوئی بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمون والحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وجميع سخطك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا من قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من البرد والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اے ہمارے مالک اے رب کائنات تیرا احسان ہے اللہ تو نے اپنی کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ ہم اس قابل نہ تھے یہ خاص تیرا احسان ہے اے رب کائنات اے ہمارے مالک ہم نے تیری کتاب کو پڑھا اللہ ہم نے تجھے بڑا غفور رحیم پایا اللہ تو نے اپنا تعارف ہم سے کروا دیا اے رب کائنات اے اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ میں بھی اضافہ ہوا اے رب کائنات تو اللہ تو ہم سب کو استقامت عطا فرما اے رب کائنات تو نے جنت کا بھی تعارف کروا دیا تو نے جہنم کا بھی تعارف کروا دیا اے رب کائنات ہم تیری کمزور بندیاں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ہمارا رب بس تو ہی ہے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے اللہ تو ہی اول ہے تو ہی آخر ہے اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اللہ تجھ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں اللہ تو لاکھوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ نے تیری کتاب میں یہ پایا ہے جو تیری طرف چل کے آتا ہے تو دوڑ کے آتا ہے اللہ تو کہتا ہے وَلَا نَزِيرُ عَجْرِ الْمُحْسِنِينَ تو محسنین کی اجر کو ضائع نہیں کرتا تو کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا تجھ سے زیادہ قدر کرنے والا کوئی نہیں اے رب کائنات اے ہمارے مالک تو بالکل ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے کائنات ہمارے مالک ہمارا دشمن شیطان ہمیں تیری بربادی سے روکتا ہے اے رب اے اللہ اے رب کائنات جو ہمارے دلوں کی کیفیت ہے اگلے 11 مہینے ہمارے دلوں کی کیفیت ایسے ہی رکھنا اللہ اپنی کتاب سے ایسے ہی جوڑے رکھنا اللہ ایسے ہی قیام کرنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ ایسے ہی اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنانا اے رب کائنات اے ہمارے مالک یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اللہ تو ہم سب کو جما دے ہمیں وہ خوش قسمت بنا دے تتنزل علیکم الملائکہ ولا تخافوا جس کو دنیا میں ہی جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مت ڈرو مت غم کرو اللہ تو ہمارا دوست بن جا
ہمارا وکیل بن جا، ہمارا کارساز بن جا۔ اے رب کائنات اگلے مرحلے بڑے سخت ہیں، اے رب ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات اے ہمارے مالک، یہ وہی دور ہے جو فتنوں کا دور ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان صبح کو مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہوگا۔ اللہ آج کے سوشل میڈیا نے سب کے ایمان ایسے خطرے میں کھڑے کر دیے ہیں۔ اللہ تو ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ان کو اللہ اس دجال سے بچا کے رکھنا۔ اے رب کائنات ہمارے بچوں کو اللہ دین اسلام کی خدمت کے لیے چن لے، اللہ تو ان سے کوئی بڑا کام لے، اللہ ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اے رب کائنات ان کو قرآن سے جوڑ دے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑ دے، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تو ہماری بیٹیوں کو شرم و حیا والیاں بنا دے، اللہ اپنے پردے کی حفاظت کرنے والیاں بنا دے، اللہ ہمارے بیٹوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑ دے، اللہ دینی مسجدوں کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ اے رب کائنات ہمارے والدین کو بخش دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہم اپنے والدین کے لیے اللہ جو بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ یہ ساری جو محنت ہے اللہ اس کا اجر ہمارے والدین کو عطا فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، اللہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بنا دے، اللہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بنا دے۔ وہ تیرے نبی سے بڑی محبت کرنے والے تھے، اللہ جن کے والدین سلامت ہیں کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، آسانیوں کے معاملے فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر کرنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جانا، اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم اور غمزہ بنانا۔ اے رب کائنات ہمارے لیے سب سے قیمتی شے ایمان ہو، اے رب کائنات ہمارے ہاتھوں کو فراخ کر دے، ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے، اللہ اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بنا، اللہ احسان جتانے والا نہ بنانا، اللہ تانے دینے والا نہ بنانا، اللہ غیبتیں اور چغلیاں کرنے والا نہ بنانا، اللہ ہماری زبانوں پہ خیر کی بات جاری کر دے، اللہ ہم سے وہ کام کروا اجر غیر ممنون، اللہ وہ کام کروا جس کا اجر کبھی ختم نہ ہوگا، ایسے صدقہ جاریہ کے کام کو ہم سے کروا۔ اے رب ہماری سب بہنوں کی اولادوں کو نیک طالبی بنا، ان کی دنیا اور آخرت کی ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ میری بہنیں جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں اللہ اے رب کائنات جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہماری بچیاں اللہ عطرت، رمشا، صوبیہ، سندر، سالیہ، فرحت، عالیہ، سدرا، رابعہ، ثنا، باقی دونوں کو اس کے علاوہ جو مجھے کہتا ہے اے اللہ میں بھول جاتی ہوں مجھے معاف کر دینا، سب کو ہماری دعاؤں میں شامل کر۔ اے رب کائنات تو اپنی رحمت سے اللہ تو اپنی رحمت سے ان بچیوں کی جھولیاں بھر دے، اللہ تو اپنا کرم کر دے، تو خود کہتا ہے فیقول بتاتا ہے اللہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ ہم صرف تجھ سے مانگتی ہیں، اللہ یہ ہاتھ صرف میرے آگے اٹھتے ہیں، اللہ یہ بچیاں بڑی صابرہ، بڑی شاکرہ، بڑی نیکیوں میں دوڑنے والیاں ہیں، اللہ یہ کتنے پیارے پیارے کام کر رہی ہے اپنی جوانی میں، اللہ تو اس سے راضی ہے تو ان کو اولاد عطا فرما، اللہ ان کے نیک اعمال میں یہ وسیلہ بنا دے اور ان کو نیک اور پہلے اولادیں عطا فرما، اللہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اس گھر میں اللہ بچوں کی ہمیں آوازیں سنائی دے، اے رب کائنات اے ہمارے مالک دوسری بہو ہے رکشا اللہ اس کو بھی نیک اور پہلے اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تو نوفل کو صحت تندرستی عطا فرما، پچھڑا من ختم کر دے، اس بچے کو سکون عطا فرما، مکمل شفا جلال کاملہ عطا فرما، اللہ تیری کمزور بندیاں
अल्लाह तो अपना को नेक और सहले बच्चा बनाते, अल्लाह वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाते। ए रब्बे कायनात हमारी बहन रुखसाना को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, अल्लाह उसकी बीमारी मुकम्मल खत्म कर दे, अल्लाह तू उसको शिफा अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए हमारे मालिक, मोहम्मद राशिद साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। जुबैर और हफ्सा के लिए बेहतरीन जो उनके लिए रिश्ते के लिए हो, अल्लाह वो फैसला फरमा। शाहबीर के दाखिले के लिए आसानियां फरमा, आबिद की परेशानी दूर कर दे, हाजी सल्लन की बहू के लिए जो बेहतर हो, बच्ची के लिए, उसके बच्चे के लिए ए रब्बे कायनात बेहतरीन फैसला फरमा। अल्लाह शहीद बाजी बच्चों के रिश्तों के लिए दुआ के लिए कह रही हैं, ए अल्लाह बेहतरीन रास्ता निकाल दे। नसीम अख्तर के बच्चे के रिश्ते के लिए कोई बेहतरीन रास्ता निकाल। तो सोबिया के शोहर का गुस्सा खत्म कर दे, और सर जमीन के माली मसाइल हल कर दे, और सैयद राशिद साहब को सेहत दे, नरगिस अंजम के कैंसर को खत्म कर, अस्मा और लाइबा का डिप्रेशन खत्म कर दे, माहा और तन्हा को औलाद नरीना अता फरमा, फरजाना को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, सलमा को कैंसर से शिफा अता फरमा, अस्मा की बख्शिश कर दे, अल्लाह को अस्मा को बख्श दे और जवानी में तेरे पास आई है तो उसकी कब्र को फराह कर दे। नाशीन इमरान उसकी औलाद को नेक बना, उसको सेहत अता फरमा। लाइबा और अस्मा और जमील साहब की मुश्किलें आसान कर, अनीला और अतिया दोनों बेटों को साहिब औलाद करे, और नबीला की जेठानी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। आंटी नसीम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा जो कराची में है। रब्बे कायनात हमारी बच्चियां इनके नसीब खोल दे, अल्लाह सना के नसीब खोल दे, अल्लाह तू कोई बेहतरीन घर अता फरमा, अल्लाह तू गरीब के लिए बेहतरीन घर अता फरमा। इन बच्चियों की किस्मतें खोल दे और हमें इनकी खुशियां दिखा, अल्लाह माओ के दिलों को सुकून अता फरमा। इसके अलावा मेरी जो बहनें परेशान है अपने बच्चों के रिश्तों के लिए, अल्लाह बेटों को भी नेक साले बीवियां अता फरमा, और बेटियों को भी नेक साले शौहर अता फरमा। नेक लोगों के साथ वास्ता जोड़ना, हाजी शमीम के बेटे के लिए कोई बेहतरीन रिश्ते का इंतखाब कर। ए रब्बे कायनात जो लोग अपने गाँव के लिए कह रहे होते हैं, अल्लाह उन सबको मेरी दुआओं में शामिल कर ले। ए रब्बे कायनात अपनी रहमतों में दाखिल फरमा, अल्लाह जरा की बेटी का बेहतरीन नसीब देते और उसकी बेटी के लिए आसानियों के मामले फरमा। ज़ैनब, कौसर, अल्लाह इन सब के मसले हल कर दे, इनकी परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह तुम्हारी शिमशाद को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, अल्लाह उसके लिए आसानियों के मामले फरमा, अल्लाह तू उससे राजी हो जा, अल्लाह तू दुल्हन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, उसके कैंसर को खत्म कर दे, अल्लाह उसको शिफा आजिला और कामिला अता फरमा। अल्लाह तेरी कमजोर बंदियां हैं, ए रब्बे कायनात तुम्हें किसी आजमाइश में न डालना। ए रब, आंटी तशरीफ को, आंटी रजिया को और आंटी के अजीजा को ये सब आती रही, दौरा मुराद इस बढ़ापे में सुनती रही, अल्लाह तो इनसे राजी हो जा। ए रब्बे कायनात, ए रब्बे कायनात तू इनसे राजी हो जा। और एक और आंटी आती थी अपनी बहन के लिए दुआ करवाती थी, ए रब्बे कायनात सबसे राजी हो, इनके दर्जात की बुलंदी अता फरमा, अल्लाह कुरान से इनको ऐसे ही जोड़े रखना, हमारे बुढ़ापों को भी इतना ही हसीन बनाना, हमारे बुढ़ापों को भी इतना ही हसीन बनाना। अल्लाह दुआन की नौकरी का कोई बेहतरीन इंतखाब कर दे, अल्लाह उस बच्चे के रिस्क के दरवाजे खोल दे, ए रब्बे कायनात रिस्क हलाल अता फरमा, अल्लाह इस गम और इस परेशानी से निजात अता फरमा। अल्लाह जो मेरी बहनें जो दुआएं अपने दिलों में लेकर आई हैं, अल्लाह जिसका जो गम है, अल्लाह तू हमसे ज्यादा उनको जानता है। ए रब्बे कायनात सबकी दुआओं को कबूल कर ले। मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, तो अपनी अपनी दुआएं मांग।
اے رب کائنات ہمارے تمام عزیز و قارئ جو فوت ہو چکے ہیں سب کو بخش دے، سب کی قبروں کو خراب کر دے، اللہ ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے رب کائنات، اے ہمارے مالک، ہم سب کو رزق حلال عطا فرمانا، اے رب ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرما دے۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے رب کائنات تو ہم سب کو لیلۃ القدر کا اجر و ثواب عطا فرما، اور یہ آنے والا یہ جو اگلا سال ہے اللہ اس کو ہمارے لیے مبارک ثابت کرنا، اللہ نے بدبختی لکھی ہے تو اس کو مٹا دینا، اللہ اے رب کائنات پریشانی اور غموں سے بچانا، ہمارے بندے پاکستان کی حفاظت کرنا، ہمارے حکمرانوں کو اللہ ان کے دلوں میں تقوی پیدا کر دے، سب کا ڈر نکال کے بس اپنا ڈر ڈال دے، اللہ تو غزہ کے مسلمانوں پر رحم کر، اللہ تو ان کے لیے آزادیوں کا معاملہ فرما، اللہ ان کی مشکلیں دور کر دے، اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو توفیق دے، اللہ سب مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اللہ ان کی مدد کرے اور ہمارے دشمن کو نیست و نابود کر دے، ہمارے دشمن کو تباہ و برباد کر دے، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، اللہ جیسے تو نے اے رب کائنات ابراہا کے لشکر کو تباہ کیا، اللہ ویسے ہی ان کے لشکروں کو بھی تباہ کر دے، اللہ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ وہاں تیرا گھر ہے، اس گھر کو ٹھانا چاہتے ہیں، اللہ رب کائنات کو کلمہ پڑھنے کی سزا بھگت رہے ہیں، رب تیرے دشمن ہے، تیرے دین کے دشمن ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما، جو فوت ہو گئے ہیں ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما، اے رب ان کی مشکل آسان کر دے، جہاں جہاں مسلمان ہیں اے رب کائنات ان کی مشکلیں آسان فرما، اللہ تو ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، اللہ اپنے گھر بار بار جانے والا بنا دے، اللہ خالی ہاتھ ہے اللہ نیکیوں کے بڑھنے بڑھانے والا بنا دے، اے رب کائنات ہم نے جس نے بچوں کے جو رشتے کرنا چاہتے ہیں اور کر لیے ہیں اللہ وہ مبارک ثابت کر دے، اور جن کو نہیں مل رہے اللہ تو غیر سے مدد فرما، نیک اور سہلے لوگوں کے ساتھ واسطہ جوڑنا، اے رب کائنات اس گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اے اللہ تمہاری بہن سے راضی ہو جا، اللہ تو ان کے سر پر شفا کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھنا، ان کی آنکھیں اپنی اولاد کی طرف سے ٹھنڈی رکھنا، جیسے اس گھر کو انہوں نے کھولا ہے اللہ تو جنت میں ان کے لیے محلات یاد کروا دے، اے رب کائنات ان کی درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، اے رب ان سے ساری کوشش کو قبول کر لے، اللہ جو میری بہنیں دور دور میں آئی ہیں اللہ ان کا آنا قبول کر، جو مرادیں لے کر آئی ہیں اے رب کائنات ان کی تمام مرادیں پوری کر لے، اے رب ان کی دعاؤں کو سن لے، اے رب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تو گواہ ہے تیرے سوا کسی کو نہیں پکارتے، موت ہمارے لیے اپنی طرف سے حسین تحفہ بنا دینا، فرشتے آ کر تیری طرف سے رضا کے پیغام لے کر آئیں، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے بتا دینا، ہر طرح کے عذاب سے بچا دینا، ہر طرح کی خوشحالی پیدا کر دینا، جنت کی طرف کھڑکی کھول دینا، اور روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آبے کوثر پینا نصیب کرنا، اے رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آبے کوثر پینا نصیب کرنا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آسان سا حساب لینا، عرش کے سائے تلے جگہ عطا کرنا، اللہ ہم سب کو پورے سرار پر بجلی کی تیزی سے گزار کر لے جانا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن مسیح الدجال ونعوذ بک من محیا والممات، اے رب کائنات ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، مسیح دجال سے بچا، اور زندگی اور موت کے ہر طرح کے فتنوں سے بچانا، کلمہ شہادت پڑھتے دنیا سے جائیں
ہماری زندگی بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہو، ہماری موت بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہو۔ اللہ تو متقین کو جیسی موت عطا کرتا ہے، اللہ ویسی موت عطا کرنا۔ اے رب کائنات، اے ہمارے مالک، ہم سب کے اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دینا۔ اللہ جتنا تو نے اس سال خدمت لی، اللہ جب تک زندگی ہے تو ایسے ہی خدمت لیتے رہنا۔ اللہ ہمارے قول و فعل کی تضادات کو ختم کر دے۔ اللہ یہ جمعے کا دن ہے، اے رب کائنات، ایسا ہی ایک دن ہوگا جب ہم تیرے آگے کھڑے ہوں گے، ہمیں وہ خوش قسمت بنا دینا جو تیری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے اور جس کو دیکھ کر تو مسکرا رہا ہوگا۔ اللہ یہ دن ہمارے لیے چند گھڑیوں کا کر دینا، آسانیوں کا معاملہ کر۔ اے رب کائنات، ہر طرح کی خیر عطا فرما جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر شر سے بچا جس سے بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ باجی میمونہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، فائزہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور یہ باجی جو ہماری کلاس میں آیا کرتی تھی ان کو بھی مکمل شفا صحت و تندرستی عطا فرما۔ جن نے دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے نہیں کہا، اللہ ان سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو خود کہہ دے فیکون ہو جائے۔ اے رب کائنات، ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا قیامنا ورکوعنا وسجودنا ودعاءنا۔ اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول کر لے۔ اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول کر لے۔ اللہ تو ہمارے خیرات صدقہ کو قبول کر لے۔ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر لے۔ اللہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہم ہر نیکی کا کام کریں۔ اللہ اپنے لیے چن لے، اپنا بنا لے، اپنے رستے پر دوڑا دے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر بن جا۔ اللہ اے رب کائنات، تجھے آگے سجدہ نہیں کرتے تو ان کی آواز، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ رب کائنات تو گواہ ہے، ہم تیرے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے، یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلاتے۔ اللہ تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہی آمین۔ اللہ اس کو آخرت کے لیے محفوظ کر لے۔ اللہ اس کو اللہ غنی بشرا کو اللہ سکون عطا فرما، جن کے اندر بے چینی ہے اور بے چینی کو ختم کرتے، اللہ ان کے غموں کو دور کرتے، ان کو سکون عطا فرما۔ اے رب کائنات، تو ہی ہے اللہ، صرف تو ہی قادر ہے۔ اے رب کائنات، ہماری بہن کے ہر طرح کی غم پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ جو میری بہنیں اس سال نہیں آئی ہیں، ان کو ہمارے ساتھ ملا دے، ہمیشہ ان کو ہمارے ساتھی بنا دے، قرآن سیکھنے والیاں۔ اے اللہ تو ہم سب کو بڑھا رکھ، اللہ تو ہمیں زیادہ کر دے، ہمیں تھوڑے نہ رکھ، ہمیں زیادہ کر دے، تھوڑے نہ رکھ۔ اللہ تو رکشا سے راضی ہو جا، اتنی دور بیٹھ کے رب کائنات کو اتنی بڑی خدمت کر رہی ہے، اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ تو عزت سے راضی ہو جا۔ اللہ یہ میری روحانی بیٹیاں ہیں، رب کائنات میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو کیسے مدد کرتا ہے۔ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا خاص احسان ہے، اللہ تو ان کی ساری کوشش کو قبول کر لے، اور ان کو جو اولاد کی کمی ہے اللہ وہ اولادیں عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا توفيق إلا بالله. لا توفيق إلا بالله.